فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم اس نشست میں پڑھنے جا رہے ہیں مکتوب 68 جو کہ شرح نہج البلاغہ کلام امیر المومنین علی علیہ السلام ہے۔ اس کی تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، جبکہ پیشکش باب العلم دار التحقیق کراچی کی ہے۔ والیوم 11 میں ہم پڑھ رہے ہیں مکتوب 68 جو کہ کتاب کے صفحہ نمبر 257 پر ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کا مکتوب گرامی جناب سلمان فارسی رضی اللہ کے نام اپنے دور خلافت سے پہلے، اس سے پہلے کہ مکتوب پر ایک نظر ڈالیں، آئیے مکتوب کی سند کے حوالے سے جانتے ہیں۔ اس مکتوب کے دوسرے حصے کو کلینی رحم اللہ نے سید رضی رحم اللہ سے پہلے اصول کافی کی دوسری جلد میں نقل کیا ہے، لیکن اس بابت کوئی ذکر نہیں کیا ہے کہ یہ مکتوب سلمان فارسی رضی اللہ کے نام لکھا گیا تھا، اور اسی طرح شیخ مفید رحم اللہ نے اسے کتاب ارشاد میں، قاضی قضائی نے دستور معالم الحکم میں، اور شیخ ورام رحم اللہ نے اسے تنبیہ الخواطر میں کچھ فرق کے ساتھ نقل کیا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ نہج البلاغہ کے علاوہ کسی اور ماخذ سے لیا گیا ہے۔ پھر یہ کہ سید رضی رحم اللہ نے اس مکتوب کے پہلے حصے کو کلمات قصار نمبر 119 میں ذکر کیا ہے۔ حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ 452۔ اور اب آئیے ہیڈنگ مکتوب پر ایک نظر۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے کہ یہ مکتوب امام علیہ السلام نے اپنی خلافت سے پہلے سلمان فارسی رضی اللہ کے نام تحریر فرمایا ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے دنیا کی بے ثباتی اور اس پر ترک اعتماد پر زور دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس میں دنیا کو ایک ایسے سانپ سے تشبیہ دی ہے جو ظاہراً نرم اور خوبصورت ہے، لیکن اس کے اندر زہر قاتل بھرا ہوا ہے۔ اس میں آپ علیہ السلام نے خاص طور پر دنیا کی نعمتوں اور لذتوں کے ناپائیدار ہونے پر تاکید فرمائی ہے۔ عربی کا پیراگراف آپ کی سماعتوں کی نظر، اس کا پہلا آغاز اور اختتام کہ اما بعد فإنما مثل الدنیا مثل الحیت، اور اختتام ہو رہا ہے انہو الی ایحاشن والسلام۔ ترجمہ: اما بعد، اس دنیا کی مثال صرف سانپ جیسی ہے جو چھونے میں انتہائی نرم ہوتا ہے، لیکن اس کا زہر انتہائی قاتل ہوتا ہے۔ اس میں جو چیز اچھی لگے اس سے بھی کنارہ کشی کرو کہ اس میں سے ساتھ جانے والا بہت کم ہے۔ اس کے ہم و غم کو اپنے سے دور رکھو، اور اس سے جدا ہونا یقینی ہے، اور اس کے حالات بدلتے ہی رہتے ہیں۔ اس سے جس وقت زیادہ انس محسوس کرو اس وقت زیادہ ہوشیار رہو کہ اس کا ساتھی جب بھی کسی خوشی کی طرف مطمئن ہوتا ہے، یہ اسے کسی ناخوشگوار کے حوالے کر دیتی ہے اور انس سے نکال کر وحشت کے حالات تک پہنچا دیتی ہے۔ والسلام،
और अब पढ़ते हैं शरह व तफसीर। उन्वान है दुनिया खूबसूरत सांप की तरह। तफसीलात कुछ यूं हैं कि अगरचे बहुत से मुफस्सिरीन ने इस मकतूब के मजमून को वाज़े जाना है और इसकी शरह व तौज़ी से चश्म पोशी की है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे निकात हैं कि जिन पर तवज्जो जरूरी है। इमाम अलैहिस्सलाम पहले इस मकतूब के आगाज में दुनिया के लिए एक खूबसूरत तशबीह पेश करते हुए फरमाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, अम्मा बाद इस दुनिया की मिसाल सिर्फ सांप जैसी है जो छूने में इंतहाई नरम होता है लेकिन उसका जहर इंतहाई कातिल होता है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। जाहिर और बातिन का ये दोहरापन इमाम अलैहिस्सलाम के कलमात में मुख्तलिफ सूरतों में देखने को मिलता है। यहाँ जाहिर का नरम होना और अंदरूनी जहर का कातिल होना जिक्र हुआ है। एक और जगह दुनिया को खूबसूरत औरत से तशबीह दी गई है जो अपने शौहर को एक एक करके कत्ल कर देती है। यहाँ पर साथ साथ ये भी लिखा है कि जबकि कहीं ऐसे चश्मे से तशबीह दी गई है कि जिसका पानी साफ, शफाफ और खुशगवार है, मगर वहां पहुंचने का रास्ता बहुत खतरनाक है और जानलेवा है। और ये हवाला है नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 53 का। जबकि इससे पहले जब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि शौहरों को एक एक करके कत्ल कर देती है, उसका हवाला नहजुस सादा जिल्द नंबर 3 सफा 174। आइए आगे चलते हैं। ये सब तशबीहात एक मतलब की तरफ इशारा हैं कि दुनिया का जाहिर खूबसूरत और पुरकशिश है लेकिन उसका बातिन आलूदा और खतरनाक है। फिर इमाम अलैहिस्सलाम इस खूबसूरत और मौसर तशबीह के बाद सुलेमान फारसी रजी अल्लाह को कुछ हिदायत देते हैं। पहले फरमाते हैं, मौला कि इस चीज में जो अच्छी लगे उससे भी किनारा कशी करो, और फिर उसके लिए एक दलील फरमा रहे हैं मौला कि क्योंकि इसमें से कुछ जाने वाला बहुत कम है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये इस बात की तरफ इशारा है कि दुनिया की उम्र मुख्तसर है और आकिल इस पर फरेफ्ता नहीं होता। बाज मुफस्सिरीन ने इस जुमले की एक और तफसीर बयान की है और कहा है कि मकसद ये है कि मान ले दुनिया में से जो चीज साथ ले जाई जा सकती है वो बहुत कम है, यानी कफन के अलावा और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर यह भी लिखा है कि हमारी तफसीर की बिना पर लफ्ज माँ मौसूला होगा और पहली तफसीर की बिना पर लफ्ज माँ जमान की तरफ इशारा होगा, लेकिन बाद वाला जुमला निशानदेही करता है कि पहली तफसीर ज्यादा मुनासिब है। अब दूसरी हिदायत में इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, कि इसके हम गम को अपने से दूर रखो, इससे जुदा होना यकीनी है और इसके हालात बदलते ही रहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। जाहिर सी बात है कि इंसान उसी चीज से दिल लगाएगा जो तवील मुद्दत तक उसके साथ हो और मुंतशिर ना हो। मसलन जो घर आज मेरे इख्तियार में है और कल किसी और के इख्तियार में हो और हर रोज कोई नया रिहायशी उसमें आकर रहे, तो इस काबिल नहीं होगा कि आदमी उस पर फरेफ्ता हो जाए। फिर लिखा है कि अरबी का एक जुमला कह लीजिए कि तसर्रुफ़े हालातेहा का जुमला इस मतलब की तरफ इशारा है कि सिर्फ यही नहीं कि दुनिया की उम्र मुख्तसर है, बल्कि जितनी मुद्दत वो हमारे साथ होती है उसमें उसकी हालत यकसा नहीं रहती और हमेशा तगय्युर व तबद्दुल के आलम में होती है। मसलन मुमकिन है कि हर चंद रोज बाद हाकिम बदल जाए, लेकिन इन्हीं चंद दिनों में सुकून मयसर ना हो और कोई ना कोई हादसा या मसला दरपेश आता रहे। तीसरी हिदायत में इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इससे जिस वक्त ज्यादा उन्स महसूस करो और उस वक्त ज्यादा होशियार रहो कि इसका साथी जब भी किसी खुशी की तरफ से मुतमईन होता है, ये
उसे किसी नाखुशगवार के हवाले कर देती है और उन्स से निकाल कर वहशत के हालात तक पहुंचा देती है। वसलाम। ये दुनिया के अजायबात में से एक तरफ इशारा है कि इंसान को तस्कीन देने वाली अक्सर चीजें मुतजलजल हैं, या उन चीजों से दिल लगाने वालों में से अक्सर को उनसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है, और ये इस हकीकत का पता देता है कि दुनिया की किसी भी चीज पर एतमाद नहीं किया जा सकता, और आकिल इंसान को इस पर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। दुनिया की तारीख भी इस मतलब की सच्चाई पर गवाह है। अक्सर दफा ऐसा हुआ कि मजबूत से मजबूत तरीन हुकूमतें रातों रात दिगरगूं हो गईं और ताकतवर तरीन हुक्मरानों ने एक ही दिन के अंदर अपनी कुर्सी दूसरों के हवाले कर दी। अब यहाँ पे लिखा है कि असरे हाजिर की शीरी ज़बां शायरा ने इस बारे में बहुत खूब कहा है। सामीन, उन शायरा का नाम है परवीन एहतिसामी, अलिफ आइन ते स्वाद अलिफ मीम छोटी, और ये उनके दीवाने परवीन एहतिसामी से लिए गए कुछ अशार हैं। लेकिन ये क्योंकि फारसी में है और मुझे फारसी पढ़नी नहीं आती, मैं इसके सिर्फ पहला शेर आपकी समातों की नजर करती हूँ और आप इसको मजीद तलाश कर लीजिएगा। ई दिल अबस मखूर गमे दुनिया रा, फिक्रत मकन नयामदा फरदारा, और आखिरी है ई बागबान सिपाह खिजा आमद, पस देर की शतीम इन गुले राना रा। तो यहाँ पर ये पूरा 8 अशार पर मुश्तमिल कलाम है उन शायरा का। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं नुकात। नुकात की हेडिंग है हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह कौन है, ये सवालिया निशान है। आइए तफसीलात जानते हैं। लिखा है कि सुलेमान रजी अल्लाह यकीनन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुजुर्ग सहाबियों में से एक थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में नकल हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन अल्लाह ने मुझे 4 लोगों से मोहब्बत का हुक्म फरमाया है और मुझे खबर दी है कि वो खुद भी उनसे मोहब्बत रखता है, और वो 4 लोग अली अलैहिस्सलाम, सुलेमान रजी अल्लाह, अबू जर रजी अल्लाह और मिकदाद रजी अल्लाह हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हवाला नोट कीजिए, बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 22, सफ़ा 391। सलमान रजी अल्लाह के मकाम व अजमत और उनके हालात जिंदगी के बारे में बहुत सी कुतुब और मकालात लिखे गए हैं, और कदीम व जदीद मौर्रखीन ने उनकी अजमत के साथ तारीफ की है। जैसे किताब इस्तेआब, अलिफ सीन ते ये आइन अलिफ बे, इस्तेआब में हजरत आयशा रजी अल्लाह से नकल हुआ है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त सलमान रजी अल्लाह के साथ नशिस्त किया करते थे, और बाज औकात ये नशिस्त इतनी तुलानी हो जाती थी कि हम पर नींद का गलबा होने लगता था। इन नशिस्तों में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सलमान रजी अल्लाह के दरमियान क्या गुफ्तो शनीद होती थी, इसका इल्म सिर्फ खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। उनके हालात जिंदगी में लिखा गया है कि अगरचे वो ईरान के कदीम बादशाहों की नस्ल से थे, लेकिन उन्होंने खुद को सिर्फ इस्लाम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब कर रखा था, और कहा करते थे कि खुदावंद ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मुझे आज़ाद किया और उन्हीं के वसीले से मेरा मकाम बुलंद किया और उन्हीं के वसीले से मुझे बेनियाज किया। दरूद सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। मेरा हसब व नस्ब यही है और बस। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सुलेमानो मिन्ना अहलल बैती के जुमले के जरिए उनकी इस बात की तस्दीक फरमाई, इसीलिए उन्हें सलेमाने मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा गया। उनके हालात जिंदगी में ये भी
آیا ہے کہ بیت المال سے آپ کا سالانہ حصہ 5000 دینار تھے، لیکن آپ وہ راہ خدا میں انفاق کرتے تھے اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہت ہی سادہ زندگی گزارتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ اپنے ہاتھ کی کمائی کے علاوہ کسی اور مال سے استفادہ کروں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کسی نے بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ بہتر کھانا ہرگز نہیں کھایا، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے فی ظلالی نہج البلاغہ، جلد نمبر 4 صفحہ 177۔ البتہ اصول کافی کی ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ اپنی سالانہ ضرورت کی حد تک اس بیت المال کے حصے میں سے اٹھا لیتے اور باقی راہ خدا میں انفاق کرتے تھے۔ یہ دو حدیثیں آپس میں تضاد نہیں رکھتی، کیونکہ ممکن ہے کہ پہلی اس دور سے مربوط ہو جب سلیمان رضی اللہ میں کام کاج کرنے کی طاقت تھی، اور دوسری حدیث ان کے بڑھاپے کے دور سے مربوط ہو جب ان میں کام اور محنت مزدوری کی طاقت نہ تھی۔ علامہ مجلسی حدیث سلیمان و منا اہل البیتی کی شان ورود میں ایک مطلب نقل کرتے ہیں کہ ایک دن سلمان فارسی رضی اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ حاضرین مجلس نے ان کے سنو سال نیز ان کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ وابستگی کے سبب ان کا احترام کیا اور انہیں صدر مجلس کے پاس بیٹھنے کے لیے کہا۔ اتنے میں حضرت عمر بھی داخل ہوئے اور سلیمان رضی اللہ کو دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ اجمی شخص جو عربوں کی مجلس میں جا کر اوپر بیٹھا ہے، یہ کون ہے؟ تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور ایک خطبے کے بعد فرمایا کہ خلقت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے سبھی انسان کنگھی کے دانوں کی طرح برابر ہیں، نہ عرب کو عجم پر کوئی فضیلت ہے اور نہ گورے کو کالے پر، مگر تقوی کی بنیاد پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ سلیمان رضی اللہ ایک ایسا سمندر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، ایسا خزانہ ہے جو کبھی تمام نہ ہوگا۔ سلیمان رضی اللہ ہم اہل بیت میں سے ہے اور وہ ایسی آبشار ہے جس سے علم و برہان کا پانی بہ رہا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 22 صفحہ 348، جلد حصہ نمبر 64۔ بعض دوسری روایات سے بھی استفادہ ہوتا ہے کہ سلمان رضی اللہ ان ہستیوں میں سے تھے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی حمایت میں کھڑے ہوئے، مگر چونکہ آپ علیہ السلام اور آپ کے دوست دار اقلیت میں تھے لہذا خاموشی اختیار کی۔ حوالہ ہے وہی ماخذ یعنی کہ پچھلا والا بہار الانوار اور صفحہ 328 حصہ 36 اور 37۔ پھر لکھا ہے کہ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی روایات نقل ہوئی ہیں جو سلمان فارسی رضی اللہ کے عظیم مقام و مرتبے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ مثلا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں نقل ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دین سریا کی بلندی پر بھی ہوتا تو سلمان رضی اللہ وہاں پہنچ جاتے۔ حوالہ نوٹ کیجئے بہار الانوار، جلد نمبر 16 صفحہ 310۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ایک حدیث میں نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سلمان فارسی لقمان حکیم کی مانند ہیں۔ حوالہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد نمبر 18 صفحہ 36۔ سلمان فارسی رضی اللہ نے خلیفہ دوم کے دور میں مدائن کی حکومت جو در حقیقت پورے ایران پر پھیلی ہوئی تھی اس کی پیشکش کو چند واضح وجوہات کی بنا پر قبول کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ 35 یا 36 ہجری یعنی خلافت حضرت عثمان رضی اللہ کے اواخر میں اور بعض روایت کے مطابق خلافت حضرت عمر کے اواخر میں
मदाइन में दुनिया से रुखसत हुए और वहीं मदफून हुए। आप रजी अल्लाह की कब्र आज भी मदाइन के नजदीक मोमिनीन की ज़ियारत गाह है। बाज़ रिवायात से ये भी इस्तिफादा होता है कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम तहियुल अर्ज़ के जरिए मदीने से मदाइन तशरीफ ले आए और सलमान फारसी को गुस्लो कफन दिया और उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और उन्हें सुपुर्द खाक किया। हवाला है बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 22 सफ़ा 368 और हिस्सा नंबर 7। सामीन, यहाँ पे लफ्ज जो मैंने तहय्युल अर्ज पढ़ा उसकी हिज्जे करते हैं। तोए छोटी है, यहाँ पे लिखा है तोए छोटी है, अलिफ लाम अलिफ रे ज़ाद। आगे चलते हैं, अगली हेडिंग है इसी नुक्ते में कि कुरान और इस्लामी रिवायात में दुनिया की मिसालें। तफसीलात यूं हैं कि चूंकि दुनिया की सरगर्मियां उसकी मादी लज्जतों और उनके जवाहिर अक्सर लोगों को उसके बातिन को समझने से गाफिल बना देते हैं, अगरचे उसके बातिल ज्यादा पोशीदा नहीं होते। इसी बिना पर गाफिल और बेखबर अफराद यहाँ तक कि आगाह मोमिनीन को भी खबरदार करने के लिए कुरान मजीद और इस्लामी रिवायात में मुख्तलिफ मिसालें बयान हुई हैं, जिनमें से हर एक दूसरे से बढ़कर इंसान को झंझोड़ देने वाली है। सामाइन, यहाँ पर कुल 18 यहाँ पे मिसालें दी गई हैं, 18। आइए हम मिलकर पढ़ते हैं। नंबर 1, दुनिया को आसमान से बरसने वाली बारिश से तशबीह दी गई है जो घने दरख्तों की परवरिश करती है और सब चीजों में हयात के आसार झलकने लगते हैं, लेकिन चंद महीनों के बाद खिजा आ पहुंचती है। फिर पौधों और दरख्तों के पत्ते जर्द हो जाते हैं, जिन्हें तुंद हवाएं मुख्तलिफ सिमतों में उड़ाकर ले जाती हैं और आसारे हयात लपेट दिए जाते हैं। फिर लिखा है कि इन्वर्टेड कॉमा में ये जो अरबी की यहाँ लाइन है कि नीज उनके लिए दुनिया की जिंदगी की ये मिसाल बयान कीजिए जैसे हमने आसमान से पानी बरसाया जिससे जमीन की नबातात घनी हो गई है, फिर वही नबातात ऐसा भुस बन गई जिसे हवाएं उड़ाए फिरती हैं और अल्लाह हर चीज पर मुकम्मल इख्तियार रखता है। ये हवाला सूरह कहफ की आयत 45 का जो हमने अभी पढ़ा अरबी में। उसके बाद दूसरा नंबर पे लिखा है, दूसरे नंबर पे कि इस दुनिया का, ये इन्वर्टेड कॉमा में हम तर्जुमा पढ़ रहे हैं, लिखा है कि इस दुनिया का घाट गदला और सैराब होने की जगह कीचड़ से भरी हुई है। इसका जाहिर खुशनुमा और बातिन तबाहकुन है। ये एक मिट जाने वाला धोखा, गुरूब हो जाने वाली रोशनी, ढल जाने वाला साया और झुका हुआ सुतून है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हवाला है नहजुल बलागा खुतबा 83। तीसरे नंबर पे लिखा है जो कि किताब गररुल हकम के हिस्सा नंबर 2166 का है। तर्जुमा हम पढ़ते हैं कि दुनिया बादल के साए की तरह है जिसे जरा भी करार नहीं और ख्वाब के मनाजिर की तरह और जहर मिले हुए शहद की तरह है। नेमत को सल्ब करने वाली, उम्मतों को खा जाने वाली और अजाबों को जल्ब करने वाली। जीम लाम्बे। हवाला दोबारा बता देती हूँ, गररुल हकम हिस्सा नंबर 2166। चौथे नंबर पे है जो हम पढ़ेंगे वो नहजुल बलागा के खुतबा 114 का तर्जुमा कि दुनिया एक कमान की तरह है जिसके चिल्ले में तीर रखा गया है। ये एक ऐसी कमान है जिसका निशाना कभी खता नहीं जाता और ना उसके जख्म का मदावा होता है। नहजुल बलागा खुतबा 114। पांचवें नंबर पे लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा में हम तर्जुमा पढ़ रहे हैं, गररुल हकम सफ़ा नंबर 130 हिस्सा 2214। इन्वर्टेड कॉमा के दुनिया की मिसाल तुम्हारे साए की तरह है, अगर तुम ठहरोगे तो वो भी ठहरेगा और अगर तुम उसके पीछे जाओगे तो वो दूर हो जाता जाएगा। और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। छठे नंबर पे लिखा है नहजुल सआदत जिल्द नंबर 3 सफ़ा 174। तर्जुमा, यकीनन दुनिया की मिसाल एक धोखेबाज और खूबसूरत औरत की तरह है जो हर रोज एक शख्स से अक्द करती है और रात में उसे मार डालती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सातवें नंबर पे है नहजुल बलागा के कलमाते कसार में से नंबर 64। सातवें नंबर पे लिखा है कि हम तर्जुमा पढ़ते हैं कि दुनिया एक सवारी की मानिंद है
जिस पर दुनिया वालों को घुमाया जा रहा है जबकि वो नींद की हालत में हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और अब हम पढ़ते हैं 8वें नंबर पे लिखा है कि दुनिया की मिसाल उस कपड़े की मानिंद है जो शुरू से आखिर तक चिरा हुआ है और सिर्फ एक धागे से लटका हुआ है और ये धागा भी बस टूटने ही वाला है। हवाला नोट कीजिए यहाँ पर नंबर 8 का के मजमुए वराम जिल्द नंबर 1 सफ़ा 148। 9 नंबर पे बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 1 सफ़ा 152। हम पढ़ते हैं तर्जुमा। लिखा है दुनिया की मिसाल समंदर के खारे पानी जैसी है कि जिस कदर उसमें से इंसान पिएगा उतनी ही प्यास बढ़ती जाएगी यहाँ तक कि वो उसे मार डालेगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। 10वें नंबर पे है, हम तर्जुमा पढ़े हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से फरमाया कि दुनिया एक पल है, बस इसे जल्द उबूर करो और उसकी तामीर में न लगो। हवाला नोट कीजिए, ये बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 319 और हिस्सा नंबर 20। 11वें नंबर पे है जो कि बिहारुल अनवार जिल्द 70 सफ़ा 119 में से हम पढ़ रहे हैं। तर्जुमा, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की नाचीजी की मिसाल ऐसी है जैसे तुम में से कोई अपनी उंगली दरिया में डुबोकर निकाले और फिर देखे कि क्या चीज हासिल होती है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हवाला फिर बताती हूँ, बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 70 सफ़ा 119। फिर 12वें नंबर पे लिखा है जो कि हम बिहारुल अनवार की जिल्द 70 और सफ़ा 88 से पढ़ेंगे। तर्जुमा की दुनिया की मिसाल जहर जैसी है जिसे वही खाता है जो इसे नहीं जानता। 13वें नंबर पे 13 नंबर पे है कि दुनिया एक जाल है जिसमें वही गिरता है जो उससे ना आगाह होता है, और इसका हवाला है गररुल हकम हिस्सा नंबर 2361। 14 नंबर पे है कि दुनिया की मिसाल एक मुर्दार जैसी है, एक ग्रोह ने उसकी तरफ रुख किया है और उसके खाने पर रुसवा हुआ है और उसकी दोस्ती पर मवाफिकत की है। हवाला है नहजुल बलागा खुतबा 109। और उसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 15 पे लिखा है कि दुनिया की मिसाल उस सवार किसी है जो गर्मियों के दिन में सस्ताने के लिए किसी दरख्त के साए में चला है और आराम करने के बाद वहां से चल पड़ेगा। हवाला बिहारुल अनवार जिल्द 70 सफ़ा 119 हिस्सा नंबर 111। 16वें नंबर पे दिया है कि दुनिया गुजरगाह है न कि करार गाह। हवाला है नहजुल बलागा कलमात कसार नंबर 133। 17 नंबर पे है दुनिया एक बड़ा समंदर है जिसमें एक आलम गर्क हुआ है। यहाँ पर हवाला है उसूल काफी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 15 हिस्सा नंबर 12। आगे चलते हैं, फिर लिखा है 18 नंबर पे कि दुनिया की मिसाल सांप जैसी है जो छूने में इंतहाई नर्म होता है लेकिन उसका जहर इंतहाई कातिल होता है। और ये जो 18 नंबर पे है इसी की तफसीलात हम पढ़ रहे थे मकतूब 68 में। अब यहाँ पर ये मकतूब मुकम्मल हुआ। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।